جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میاں ظہور. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل میاں ظہور آفیشیل کے نام سے. آج ہم بات کریں گے پھر یہ تعلیم کی کہ تعلیم دوست شخصیت کی کہ جس نے جنوبی پنجاب میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں پر بڑی توجہ دی ہے. تعلیم دوست شخصیت ہیں، سیاسی حوالے سے بھی پوری دنیا میں ان کا نام ہے. میں اس وقت اگر بات کریں تو یہ جنوبی پنجاب کا جو پسماندہ لودھراں ضلع سمجھا جاتا ہے اس کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے یہ خانواں گلواں. خانواں گلواں یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چہروں سے دیکھ کر اور بچوں کے چہروں کو دیکھ کر اور اس بلڈنگ کو دیکھ کر آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ جنوبی پنجاب کا کوئی پسماندہ علاقہ ہے لودھراں. اور لودھراں کا پسماندہ علاقہ یہ خانواں گلواں کا ہے. اس کا یہ ایک سکول ہے KGS. یہاں پر اس طرح کا کوئی تعلیم دوست ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھ نے لاہور میں تو اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کے شہر لودھراں اور لودھراں کا بھی پسماندہ علاقہ خانواں گلواں، وہاں پر اس طرح کے مناظر دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور ان تمام چیزوں کا جو سہرا ہے وہ جاتا ہے جہانگیر ترین کے سر پر. جہانگیر ترین صاحب نے پسماندہ علاقے میں کروڑوں روپے لگا کر یہ تعلیمی ادارہ بنایا ہے تاکہ ہمارے جو علاقے میں بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ان کو تعلیم کے مواقع نہیں ملتے تو ان کو بہتر تعلیم دوست ماحول میں ان کو مواقع دیے جائیں تاکہ وہ بھی ملک و قوم میں اچھی بچیاں، اچھی بیٹیاں، اچھے افیسر بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. آج یہاں اس ادارے میں بیلٹ پروموشن تھی، تیکوانڈو کے حوالے سے بچوں نے بڑا اچھا ڈیمو پیش کیا. میرے ساتھ یہ بڑی پیاری شخصیات ساری کھڑی ہیں. یہ کھیلوں میں ان کے اپنے نام ہیں، اپنی پہچان ہے. ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں بہاولپور سے، بیکن ہاؤس سے، پھر ضمیر ہاشمی صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں، سنی صاحب، عمران صاحب. یہ سارے جو چہرے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کھیلوں میں بڑا نام ہے، تیکوانڈو میں ان کی جانی پہچانی شخصیت ہے. آج ہم انہی سے بات کریں گے کہ آج یہ ایک پسماندہ علاقے میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں. سر پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ بہاولپور بیکن ہاؤس میں بڑا برانڈ ہے، اس میں آپ سارا جو بچوں کو تربیت کروا رہے ہیں، کوچنگ کروا رہے ہیں تیکوانڈو کے حوالے سے، تو اس علاقے میں آ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہاولپور میں ہیں یا لودھراں؟ جی نہیں سر، بالکل بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ یہاں پہ اس طرح کا اسکول بنے گا یا اتنی اچھی بلڈنگ اور ماشاءاللہ سے. اور خانقاہ گلواں میں اس طرح کا اسکول بننا بچوں کے لیے بڑی بات ہے کہ اور بچوں کو تعلیم حاصل کرنا اور تائیکوانڈو کی ایکٹیویٹی ڈفرینٹ سپورٹس میں ان کے نام ہونا بڑا ماشاءاللہ سے ایک اپریشیٹ والا ورک ہے یہاں پہ. جی بہاولپور سے ہمارا یہ ساتھ ہی جیسے جڑواں شہر کہا جاتا ہے لودھراں اور بہاولپور کا، جیسے راولپنڈی اسلام آباد ہے اسی طرح لودھراں اور بہاولپور ہیں. سنی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بہاولپور تو ایک شہر ہے، شہر کے بچوں میں اور یہاں دیہی علاقے کے بچوں میں ٹیلنٹ میں آپ کتنا دیکھ رہے ہیں فرق؟ السلام علیکم سر. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نام ہی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اس جگہ کا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گاؤں بھی ہے خانواں گلواں. سوری، تو ادھر جب باہر آئے ہیں تو ہمیں پتا تھا کہ یہ دیہات ہے، لیکن اندر آتے ہی جو ہے اسکول کے اندر گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ماحول چینج ہو گیا. تو تب ایسا لگا کہ یہ جو بہاولپور کے پرائیویٹ سکولز ہیں ان سے بھی بلڈنگز ان کی اچھی ہیں، کلاس روم اچھے ہیں، اور تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہت اچھا ہے. بچوں کا ڈیمونسٹریشن جو ہم نے دیکھا تائیکوانڈو کا وہ ماشاءاللہ قابل تعریف تھا، اور بہت اچھی محنت کی ہے بچوں نے. ضمیر صاحب نے بہت محنت کروائی ہوئی ہے. بہت عمران صاحب آپ بھی بہاولپور سے آئے ہیں، تو آج آپ کو جو چھوٹا سا شہر ہے لودھراں اور اس کا جو چھوٹا سا علاقہ ہے خانواں گلواں، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے سر، اندر آ کے اسکول کے. اس سے پہلے بالکل اچھا، باہر سے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ ایکچولی ہم آتے ہوئے راستہ بھی بھول گئے تھے. اچھا، تو لیکن خیر جب پہنچے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے جی. اور خاص طور پہ ضمیر صاحب کے پاس تو ہم بہت 20 سالوں سے آ رہے ہیں. یہ ہمارے استاد ہیں جی، ان کے پاس ہمارا آنا جانا، ان بچوں کی طرح ہم چھوٹے بچے تھے تو آنا جانا تھا. تو ماشاءاللہ جی اتنی اچھی ایکٹیویٹیز، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ 2 سے 3 مہینے کے پیریڈ میں اتنا بچوں کو تیار کرنا یہ قابل تعریف ہے ضمیر صاحب کے لیے.
फिर से मुबारक हो ज़मीर साहब, आपको बहुत बहुत। जी देखें जी, अब जो बहावलपुर से मेहमान आए हैं तो उनकी बातें आपने सुनी कि वो रास्ता ही भूल गए थे कि किस तरह ये पसमानदा इलाका है। यकीन करें यहाँ पर सड़कें जब आते हैं तो बाज़ का तो गूगल का मैप भी शायद आपको गलत रास्ता बता दे, दूसरी गली में आपको जाना पड़े, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तो इस सारे प्रोग्राम को जब बंदा अंदर आता है स्कूल की बिल्डिंग के अंदर तो यकीन करें थकावट ही सारी उतर जाती है कि मैं भी कोई रास्ता भूल कर आया हूँ। और प्रोग्राम मैनेजर हैं तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के सर यकूब साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, तालीम के साथ बड़ा लगाव है इनका, और जितनी दिलचस्पी और जितनी मोहब्बत इनकी तालीम के साथ है, और उसी का निखार जो है आज हमने स्कूल के अंदर भी देखा और इनके चेहरे पर भी देख रहे हैं और बच्चियों के चेहरे पर भी देख रहे हैं। सर यकूब साहब, आमना गर्ल्स स्कूल तो मैंने देखा, तो आज खानवा गलुआ जो स्कूल है यहाँ आकर तो लग रहा है कि मैं लाहौर के किसी इदारे में खड़ा हूँ। जी सही कह रहे हैं। अभी जैसे आपने अभी फरमाया था कि लोधरा तो एक पंजाब का बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है, और जो खानवा घलवा यूनियन काउंसिल कह रहे हैं या खानवा घलवा का इलाका है वो लोधरा का भी समझें कि बैकवर्ड इलाका है। और यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब ने आपके सामने किस तरह का बेहतरीन स्कूल यहाँ पर दिया है। स्कूल इसके साथ सिर्फ तालीम एजुकेशन के साथ साथ जो है यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो तरीन फाउंडेशन की फ़िलासफ़ी यही है कि बच्चे जो है ना खुशी खुशी स्कूल आएँ, और बच्चे खुशी खुशी स्कूल तब भी आते हैं जब उनका स्कूल में दिल लगता है, और दिल लगाने के लिए चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसमें आर्ट है, और स्पोर्ट्स में भी रोलर स्केटिंग यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ताइक्वांडो माशाल्लाह आज आपने बच्चों का डेमोस्ट्रेशन देखा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। मैं ज़मीर साहब जो उनके कोच हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ चेस यहाँ पर होती है, स्क्रैबल यहाँ पर होती है, आर्चरी सबसे बड़ी बात, एक महंगा गेम होता है और जो समझा जाता है कि सिर्फ अमीरों के लिए है। आर्चरी में अभी बहावलपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट एक टूर्नामेंट हुआ, खानवा घलवा की बच्ची ने 2nd पोजीशन ली, तो ये बहुत ही जो है ना खुशी की बात है, और एक यहाँ का जो इलाके का एक अच्छा स्कूल और अच्छी जो चीज़ें हैं वो मुहैया हो रही हैं। जी, इस आज का जो इवेंट था उसका जो सेहरा है सारा वो तो इंतज़ामिया के सर तो है ही, उसके साथ साथ जो बच्चों के कोच हैं ताइक्वांडो के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं, इंटरनेशनल मुकाबले भी खेल चुके हैं, सर ज़मीर हाशमी साहब। ज़मीर हाशमी साहब, आज पहले तो हम आपको समझते थे आप तो बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन अमली तौर पर भी हमने आज यहाँ आकर देखा तो बच्चों ने तो बड़ा अच्छा डेमो पेश किया, तो इसके पीछे कितनी की मेहनत थी आपकी? जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब, आपने हमारी लोधरा की एक्टिविटीज़ तो देखी हैं, लेकिन आज आप माशाल्लाह फर्स्ट टाइम यहाँ पर खानवा घलवा स्कूल में तशरीफ़ लाए हैं जो कि जहांगीर खान तरीन साहब ने बनवाया है। और यहाँ पर जो ताइक्वांडो की आपने एक्टिविटीज़ देखी, ये वो जूनियर बच्चियाँ हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर बैकवर्ड इलाके में ताइक्वांडो की एक्टिविटीज़ होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि ताइक्वांडो बड़े बड़े स्कूलों में होती है, बीकन हाउस जैसे हो गया, सिटी स्कूल हो गया, इस तरह के बड़े बड़े स्कूलों में आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी होगी। लेकिन आज आपने आकर यहाँ महसूस किया होगा कि लोधरा का बैकवर्ड इलाका KGS स्कूल, जहाँ पर ताइक्वांडो में इतनी टैलेंटेड बच्चियाँ मौजूद हैं जिनके अंदर जोशो वलवला है कि वो आगे जाएंगी और अपने स्कूल का नाम रोशन करने के साथ साथ तरीन एजुकेशन फाउंडेशन का भी नाम रोशन करेंगे। अच्छा ज़मीर साहब, यहाँ इस पसमानदा इलाके में जब आपने आकर ये गेमें शुरू की तो बच्चे तो बड़े खुशी खुशी ये सारी गेम्स कर रहे हैं, आपको भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी मियाँ साहब, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट लिया 2011 से मैं तरीन एजुकेशन फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि तरीन फाउंडेशन ने जिस वक्त स्टार्ट लिया था उस वक्त इतने अच्छे स्कूल यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो गवर्नमेंट के स्कूलों से स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि मैं सुबह उठता था तकरीबन 6 बजे के करीब, तो मोटर बाइक पे जब मैं जाता था तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था, क्योंकि स्मोक कितनी ज़्यादा धुंध होती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी कि मैं सबसे पहले जो क्लास लेता था वो गेलेवाल से आगे है एक चक गुजरां वाला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, मैं वहाँ पे जाता था बाइक पे, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर बनता है, और मैं पूरे दिन में वहाँ पे जो गवर्नमेंट के 3-4 स्कूल थे, एक तरीन साहब ने स्कूल बनाया हुआ था असलम पब्लिक स्कूल, वहाँ पे भी मैंने ताइक्वांडो करवाई, लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखा। तरीन फाउंडेशन ने मेरा साथ दिया, मैंने ताइक्वांडो की प्रमोशन के लिए अपनी मेहनत को जारी रखते हुए आज माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आज इतना ज़बरदस्त टैलेंट मुझे देखने को मिल रहा है कि इन खूबसूरत टैलेंटेड बच्चियों को, जिनकी
आंखों की चमक यकीनन आपको बता रही होगी, इनकी मुस्कुराहट बता रही होगी कि ताइक्वांडो में ये किस हद तक कितना खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चियाँ आज मुझे अक्सर कहती हैं कि सर अब हम अपने वालिद की बेटियाँ नहीं बेटे बन गए हैं, क्योंकि ताइक्वांडो सीखने से इनके अंदर वो टैलेंट आ गया है कि ये अपने आप को बड़ा फिट समझती हैं और अकेली स्कूल आ जाती हैं और अकेली जाती हैं, क्योंकि जिसके पास आर्ट और हुनर होता है जैसे ताइक्वांडो जैसा हुनर, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान अपने आप को बड़ा होपफुली होकर समझता है और उसके लिए मंजिलें आसान होती हैं। जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के तौर पर अगर कहा जाए तो ये ताइक्वांडो का जो खेल है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। देही इलाके की हमारी जितनी भी बच्चियां हैं अब इस खेल की तरफ बड़ा राग़िब हैं, बड़ी दिलचस्पी के साथ ये ताइक्वांडो का खेल जो है वो इसको सीख रही हैं। बड़े देखें प्यारे प्यारे चेहरे, खूबसूरत हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, इनके चेहरों पर जो खुशी है वो देखकर यकीनन आप भी बड़े खुश होते होंगे कि कम से कम एक ऐसा अदारा है जिसमें ये खुशी खुशी आती हैं, अपनी तालीम हासिल करती हैं, उसके साथ साथ खेलों की तरफ भी माइल हैं। जी बेटा आप बताएं, जो ताइक्वांडो का खेल है कितनी दिलचस्पी से आप खेल रही हैं, उसका मकसद क्या समझती हैं? मैं ताइक्वांडो में बहुत अच्छी कारकर्दगी रखती हूँ, क्योंकि मुझे ताइक्वांडो एक बहुत अच्छी लगती है और ताइक्वांडो एक बेस्ट गेम है और मुझे ताइक्वांडो करना बेहद पसंद है, क्योंकि ताइक्वांडो के ज़रिए हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। हम अकेले भी किसी सड़क पे जा रहे हो तो हम अपनी हर तरह से हिफाजत कर सकते हैं। जी देखें जी, अगर अकेले भी, बेटी का कहना था कि अगर मैं अकेली भी स्कूल जा रही हूँ तो मैं खुद अपने आप को सिक्योर महसूस करती हूँ कि मुझे ताइक्वांडो आती है। अगर कोई भी ऐसी बात हो तो मैं अपना जो हिफाजत है अपनी खुद कर सकती हूँ। हाँ जी बेटा आप बताएं, ताइक्वांडो जो खेल है तालीम के साथ साथ ये इस तरह के इलाके में आपने कभी सोचा था कि आप इतना अच्छा अदारा है वहाँ पर पढ़ेंगी और गेम में हिस्सा लेंगी? जी, मैं तरीन एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल खादमा घतला से बोल रही हूँ। मुझे बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि हमें इस इलाके में ऐसा स्कूल मिलेगा जहाँ तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ भी होती हैं। यहाँ तालीम तो है पर हमें जो खेलों की जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनसे हमें बहुत खुश हैं, क्योंकि हम यहाँ ताइक्वांडो 5 साल से कर रहे हैं और ताइक्वांडो के साथ साथ हम बाकी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं जिनमें हम आला सरगर्मी कारकर्दगी अदा कर रहे हैं। जी ताइक्वांडो आज बेल्ट प्रमोशन थी, बेल्ट प्रमोशन का जो आज डेमो था वो मैंने देखा और तकरीब जो मुनक़िद की गई KGS स्कूल में वो बहुत ही अच्छी थी। मेरा कैमरामैन फिर से आपको दिखा सके कि ये बिल्डिंग कैसी है और ये स्कूल कैसा है, और उसके साथ साथ फिर इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो आपने देख लिए, स्टाफ आपने देख लिया। जहांगीर तरीन साहब को सारे लोग जानते हैं, उनकी जो टीम है, उनकी जो कारकर्दगी है वो आप स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। तो यकीन करें आज के इवेंट के बाद मैं समझता हूं कि जनूबी पंजाब के इस पसमानदा ज़िला लोधरा और उसके पसमानदा इलाके खानवा गलुआ में इस किस्म का जो स्कूल है और इस किस्म की जो एक्टिविटी हैं वो देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। जितने भी हमारे दीगर जो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, इक़्तिदार दिया है, तो उनको भी चाहिए कि अगर वो अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं या इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस मुल्क की बच्चियों की वो खिदमत करना चाहते हैं, तो वो अपने अपने इलाके में कोई ऐसा तालीमी अदारा बना जाएं ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उनका नाम याद करें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस अदारे के साथ वाबस्ता जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके एम्प्लॉय हैं, उनको इसी तरह खुश खुरम रखे। और इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ और बच्चों के साथ मैं आखिर में एक नारा लगाना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।